آئیے میرے جو ہم سب کھڑے ہوں گے خدا ان کے کلام کی رسپیکٹ کے لیے. جو ریفرنس ہے وہ متی رسول کی انجیل 2 باب 1 اور 2 آیت میتھیو چیپٹر 2 ورس 1 اور 2. جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. Where is the newborn king of Jew? We saw his star as it rose and we have come to worship him. دعا کریں گے. قدوس خداوند، آج کے دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ مقدسوں کی رفاقت اور تیرے گھر میں آ کر ہم اجتماعی طور پر تیری عبادت پرستش بندگی کر سکیں. آج کے کلام پر تیری برکت چاہتے ہیں اور یہ کلام بہت سی زندگیوں کو چینج کرنے کا سبب اور وسیلہ بنے. یسوع مسیح کے نام سے آمین. پلیز تشریف رکھیں. آج کا جو مضمون ہے وہ ہے کوالٹیز آف میجائز. یہ مجوسی جو ہیں ان کی خوبیاں. اب مجوسی راستے میں ہیں، ان کی خوبیاں کیسے ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن سب کچھ کلام مقدس میں لکھا ہے. میجائز مجوسی جو ہے ان کی کوالٹیز کیا تھیں، ان پہ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے. میننگ آف میجائز جو ہے ان کو ہم وائز مین بھی کہتے ہیں، مجوسی بھی کہتے ہیں، سیم چیز ہے. اوریجن اینڈ ہسٹری میں جو وائز مین نکلے ہیں، ویژنز لفظ وہاں سے نکلا ہے. ایکٹ اور پاور آف سینگ، کسی چیز کو دیکھنا جو نظر نہ آتی ہو، اس کی طاقت رکھنا. انسٹرکٹ رہنمائی کرنا، آگاہ کرنا. ٹو گائیڈ سکھانا. ڈائریکٹ ڈائریکشن. نیوی بتانا. کاگنیزنٹ لفظ ہے انگلش کا جس کا مطلب ہے صاحب معرفت ہونا. صاحب معرفت اس شخص کو کیا جاتا ہے جو دانشور ہو، عقل مند ہو اور کبھی دھوکہ نہ کھانے والا ہو. یونانی لفظ ماگوس سے مجوسی لفظ نکلا ہے. ابتدا میں ایک کہانوں کا مذہبی فرقہ تھا جو ایک خدا کو مانتے تھے. اپنے مذہب کی رسم و علوم سے اچھی طرح واقف تھے. یہ جو وائز مین جو مجوسی نکلے ہیں، یہ کہانوں کا ایک فرقہ تھا اور یہ اپنے مذہب سے بخوبی واقف تھے، اور یہ خاص کر نجوم، فالگیری اور خوابوں کی تعبیر میں خاص دسترس رکھتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں دانش مند تصور کیا جاتا تھا. آج بھی کوئی اگر بید کی بات بتاتا ہے اس کو ہم پرافٹ کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں. آنے والی باتوں کو کوئی بتائے تو یہی یہ جو مجوسی ہیں یہ کہانوں کا ایک فرقہ تھا، اس میں سے نکلے ہیں. شاہ فارس کی حکومت میں مجوسیوں نے پارسی مذہب اپنا لیا تھا. جب شاہ بابل نے یروشلم کا محاصرہ کیا تو وہ مجوسیوں کے سردار کو بھی اپنے ہمراہ لایا تھا. یرمیہ 39:13 میں یہ بات قلم بند ہے کہ یہ جو مجوسی ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے اور ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے یہ نکلے ہیں. پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں ان کی خوبی مجوسیوں کی، فرسٹ کوالٹی، وہ ہے میجائز سرچ جیزس ڈیلیجنٹلی. انہوں نے پورے دل سے یسوع مسیح کی تلاش کی ہے. ان کو وائز مین اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پورے دل سے یسوع مسیح کی تلاش کی ہے. متی 2 باب 7, 8, 9 ورس میں لکھا ہے، اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی
चुपके से बुलाकर प्राइवेट मीटिंग की और तहकीक की, लर्न फ्रॉम देम। क्योंकि ये मजूसी जो थे, क्योंकि ये गैबीन का इल्म रखते थे, क्योंकि ये ख्वाबों की तबीर करते थे, तो बादशाह ने उनसे सीखा। उनको प्राइवेट मीटिंग की। हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की, मीन उनसे सीखा। सीखा क्या? कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफत करो। अभी तक बादशाह डाउटफुल है कि ये जो बच्चा पैदा हुआ, ये मजूसी आ गए हैं हमारे घर में, जो कि मजूसियों बादशाह के घर में गए हैं, जो कि बादशाह की निशानी है। उनके जो ख्वाब हैं, उनकी किताबों के मुताबिक बादशाह पैदा हुआ है, इसलिए वो बादशाह के घर सीधे गए हैं। लेकिन बादशाह ने कहा हमारे घर में तो कोई बेबी पैदा नहीं। उनको एक सितारा इल्म नजूम रखते थे, वो बता रहा है कि कोई बादशाह पैदा हुआ है। तो सोच लो, जब जाओ मुझे भी बताना, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। स्टॉप्ड ओवर द प्लेस वेयर द चाइल्ड वाज। जहां पे बच्चा था वो सितारा वहां पर जाकर ठहर गया। इस तशना डिट्रॉनमी चैप्टर 5:32 वर्ष में लिखा है, सो तुम एहतियात रखना। सो मजूसियों की जो पहली क्वालिटी हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह की तलाश पूरे दिल से की है। इस तशना में लिखा है, सो तुम एहतियात रखना, मस्ट केयरफुल, और जैसा खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको हुक्म दिया है वैसा ही करना, और ना दाएं ना बाएं हाथ को मुड़ना। डोंट गेट साइड ट्रैक, स्टे ऑन द पैथ। जो रास्ता सीधा है, जो क्राइस्ट तक तुझे लेकर जाता है, उस रास्ते को अपनाना, ना दाएं ना बाएं मुड़ना। इमसाल 4 बाब में लिखा है 26-27 आयत में, अपने पांव के रास्ता को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहें, ना दाहिने मुड़ ना बाएं, और पांव को बदी से हटा ले। सो मेरे जीजो, कमूसल किताब के मुताबिक इल्म नजूम किसी भी बड़ी हस्ती के पैदा होने का ऐलान करते थे। इनको बादशाह ने इसलिए कहा चूंकि ऐलान इन्होंने करना है। और जब 2 या 3 से ज्यादा सितारे एक ही बुर्ज में इकट्ठे होते थे तो ये किसी बड़े आदमी की पैदाइश की अलामत होती थी। सितारों का इल्म रखते थे। सन काफमी में जुखल और मुश्तरी का एक रोशन इज्तिमा आसमान पर जाहिर हुआ, और कल्ब अलजबार सितारा सुबह के वक़्त तलू हुआ, जो कि गैर मामूली अबोताब से चमका। उस वक़्त के नजूमियों के लिए ये एक बड़े बादशाह की पैदाइश का पैगाम था। सो नजूमी जो हैं, वाइज मैन जो थे, ये एक पहले नंबर पर काहनों का फिरका था। और इन्होंने जब अपने नजूम के इल्म के लिहाज से देखा कि एक सितारा, ना सिर्फ एक सितारा लिखा है कि जुखल और मुश्तरी, ये अपनी जो इज्तिमा है आसमान पर हलचल मच गई है। और मजूसियों ने जब देखा है कि आसमान पे हलचल मची है और कलब अलजबार वो सितारा सुबह के वक़्त तलू हुआ है, और सितारों का इल्म रखने वाले जो मजूसी हैं, मैजाइज हैं मेरे जीजो, इन्होंने जब देखा कि कुछ ना कुछ हुआ है, कि बादशाह पैदा हुआ है, और ये सितारा जो हम देख रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है।
اور ان مجوسیوں کو وائز مین اس لیے کہا گیا، ان کی پہلی کوالٹی یہ ہے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ میری بیوی پیچھے ہے، میری بچے ہیں، میرا خاندان ہے، میرا کچھ ہے. انہوں نے جب دیکھا ہے کہ ہمیں وہ ستارہ دیکھا ہے جس کے بارے صدیوں سے نبوتیں ہوئی ہیں، لگتا ہے یہ وہی ستارہ ہے جو کرائسٹ کا ستارہ ہے، اور یہ چل پڑے ہیں، اونٹوں پہ چل پڑے ہیں، اور کئی ایک جگہ پہ لکھا ہے اور بھی کئی اینیمل ان کے ساتھ ہیں. لیکن میرے عزیزو، یہ جب بادشاہ کے گھر پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم جاؤ، جا کر دیکھو، مجھے بتانا چکے، مجھے خبر نہیں کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے. لیکن میرے عزیزو، یہ نجومی وہاں پر جاتے ہیں اور جا کر انہوں نے یسوع مسیح کی چرنی تک پہنچتے ہیں. ان کی پہلی کوالٹی یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے نہ ادھر مڑے ہیں نہ ادھر مڑے ہیں. میں اور آپ بھی آج اگر ہم فوکس کرتے ہیں کرائسٹ کو، یسوع مسیح کو فوکس کرتے ہیں، خدا کو فوکس کرتے ہیں، تو کوئی چیز ہمیں ادھر ادھر نہیں لے جا سکتی. آج تک اگر پریشانیوں کا، دکھوں کا، روگوں کا، طوفانوں کا شکار بنے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے میری اور آپ کی ڈائریکشن سٹریٹ نہیں ہے، جب سیدھی ہوگی. اسی لیے میرے عزیزو، پولس رسول جب کلیسیا کو ستاتا ہے تو اس راستے کا نام بھی سیدھا ہے. اس سیدھے راستے پر جب پولس آ جاتا ہے، اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور میرے عزیزو 3 دن کے بعد آنکھوں کے چھلکے اترتے ہیں تو اس کو کرائسٹ کی خبر ملتی ہے، اور چھلکے اترنے کے بعد وہ کرائسٹ کو فالو کرنے لگتا ہے. کرائسٹ کو فالو نہ صرف کیا ہے، اس نے شاگردوں سے بڑھ کر، دوسروں سے بڑھ کر خداوند کی بشارت کا وہ کام کیا کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ خطوط جو ہے وہ پولس رسول کے ہیں. ان جو میجائز ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ستارہ ایک نارمل نہیں ہے، جو ہجوم ہے اوپر گھوم رہا ہے، اور الجبار جو ہے صبح صبح نکلا ہے، اور ان کے نکلنے سے یہ چل پڑے ہیں. اور یہ ایک جگہ سے صلاح کر کے نہیں چلے، یہ تو فرق ملکوں سے آئے ہیں، کیونکہ ان کے بارے کتابوں میں لکھا گیا تھا. ایک لیجنڈ، ٹریڈیشنل سٹوری جیوش کی بک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدم سے جب خطا ہوئی ہے، عدن سے نکلے، آدم سے خطا ہوئی، عدن سے نکلے، اور ان کی فیملی میں ایک سکرول، ایک تومار نسل در نسل ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا. اور اس تومار پہ کیا لکھا تھا؟ اس تومار پہ لکھا تھا کہ تم آسمان پر ایک ایسا ستارہ دیکھو گے، اگر تمہیں وہ ستارہ نظر آ جائے جو آسمان پر روشن ہوگا، اور اس ستارے میں تجھے ایک بچے کی تصویر نظر آئے گی، اور اس ستارے میں گلوئنگ کراس ہوگی. جب تم ایسا ستارہ دیکھو جس میں ایک بچے کی تصویر اور چمکتی ہوئی صلیب نظر آئے، تو سمجھ لینا نجات دہندہ پیدا ہو چکا ہے. میرے عزیزو، یہ وہی ستارہ ہے جس کو انہوں نے دیکھا ہے. اور یہ کتابیں بتاتی تھیں، یہ ہسٹری بتاتی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بادشاہ ہوگا اور پوری دنیا کو رول کرے گا. دوسرا پوائنٹ جو مجوسیوں کو کی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے، ویدر could not stop them. مجوسیوں کو موسم نہیں روک سکے. ہم تو تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا چھٹی کر کی چرچ کی لینڈ جانا ہے، تھوڑی سی بات ہو جائے. آج نئے سال پہ میں آپ کو بوسٹ کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے پلیز اس کو سیریس لیں. اگر آپ اپنے اولاد کو خوش کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو پہلے چینج ہونا ضروری ہے. کئی بار ہم بچوں کو بلیم دیتے ہیں، واٹ اباؤٹ می اینڈ یو؟ مدر فادر وہ کہاں ہیں؟ جو ماں باپ کر رہے ہیں وہی بچے دیکھ رہے ہیں، اور وہی انہوں نے کرنا ہے. ان کو بلیم نہ دیں، وہ آپ کے ہی ہیں. جو اگر وہ ایسے کر رہے ہیں تو آپ بھی ایسے ہی تھے. تو یہاں پر جو دوسری کوالٹی میجائز مجوسیوں کی ہے، ویدر couldn't stop them. ان کو موسم روک نہ سکے. یسایہ 60 چیپٹر اس کی 3 ورس میں لکھا ہے، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی. all nation will come to see your lights. اس لیے اگر لائٹیں آپ جلاتے ہیں تو یہ بری بات نہیں. سم پیپل یہ
ٹھیک نہیں ہے, وہ بہت ہے, بہت کچھ نہیں ہے. اگر آپ لائٹیں گھر میں ایک خوشی کی بات ہے اور آپ جلائی ہوئی ہیں, یو آر فائن. قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی. آل نیشنز ول کم ٹو سی یور لائٹ. اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے. مائٹی کنگز, ان کو ہم 3 بادشاہ بھی کہتے ہیں, مجوسی, وائز مین اور 3 بادشاہ. اسی لیے ان کا نام 3 بادشاہ بھی ہے. اور مائٹی کنگز ول کم ٹو سی یور ریڈینس. تیرا جلال, تیری تجلی آ کر دیکھیں گی سلاطین. اور لوکا 12 54 55 56 ورس میں لکھا ہے, پھر اس نے لوگوں سے بھی کہا, غور سے سنیے گا, کہ موسم, دوسری کوالٹی جو مجوسیوں کی ہے, موسم بھی انہیں روک نہیں سکے یسوع مسیح تک پہنچنے کے لیے. پھر اس نے لوگوں سے بھی کہا, کیا کہا, کہ جب بادل کو پچھم سے اٹھتے دیکھتے ہو, ویسٹ سے, جب بادل ادھر سے ادھر کو آتے ہیں تو فوراً کہتے ہو مینہ برسے گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے, جب بادل ویسٹ سے ادھر کو اٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مینہ برسے گا, اور ایسے ہی ہوتا ہے, برستا ہے. اور جب تم معلوم کرتے ہو کہ دکنا چل رہی ہے, ساؤتھ ونڈ, جب ہوا اس طرف سے ادھر کو چلتی ہے تو کہتے ہو لو چلے گی. تیز جلا دینے والی دھوپ ہوگی. جب ہوا ادھر سے چلتی ہے تو تیز ہوا, جو گرم ہوا ہے, وہ چلتی ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے. اے ریاکارو, زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے. تمہیں اس بات کا امتیاز کرنا آتا ہے کہ ادھر سے بادل اٹھے ہیں, بارش ہوگی, ادھر سے لو چل رہی ہے, تیز گرمی ہوگی. لیکن اس زمانہ کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا؟ اور پھر ایوب نے اس کو اس طرح لکھا ہے, وہ اسے سارے آسمان کے نیچے, جاب 37 چیپٹر ہے, 3, 4, 6 اور 9 آیت, وہ اسے سارے آسمان کے نیچے اور اپنی بجلی کو زمین کی انتہا تک بھیجتا ہے. ویدر جو ہیں یہ مجوسیوں کو سٹاپ نہیں کر سکے. ان کی دوسری کوالٹی یہ ہے کہ جب انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ ہم نے کرائسٹ کو دیکھنا ہے تو پھر کوئی چیز انہیں سٹاپ نہیں کر سکتی. اس کے بعد رعد کی آواز آتی ہے, رورنگ آف تھنڈرز. آپ نے دیکھا ہے جب بجلی چمکتی ہے اس کے بعد در 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 کے کچھ سیکنڈ کے بعد آتا ہے. اور لکھا ہے وہ جو آواز ہے, کئی بار ہم سائنس جو ہے یہ کلام کے ساتھ چلتی ہے اور اپنے جلال کی آواز سے گرجتا ہے, وائس آف ہز میجسٹی. اور جب اس کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اسے روکتا ہے, کیونکہ وہ برف کو فرماتا ہے تو زمین پر گر. تو اسی طرح وہ بارش سے اور موسلادھار بارش میںہ سے کہتا ہے. آندھی جنوب کی کوٹھی سے اور سردی شمال سے آتی ہے. میرے عزیزو, یہ جو میجائز ہیں, وائز مین ہیں, 3 بادشاہ ہیں, ان کی دوسری کوالٹی یہ ہے کہ موسم ان کو روک نہیں سکے یسوع مسیح تک پہنچنے کے لیے. کیا ہم یہ آج وعدہ کرتے ہیں کہ جو میجائز کی طرح ہم جو ہیں میرے عزیزو, موسم کیسے بھی کیوں نہ ہو, کیونکہ یہاں لکھا ہے قومیں تیری روشنی میں. قوموں کے بارے کیوں لکھا ہے, سلاطین کے بارے کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ یہ تینوں جو وائز مین ہیں, ایک انڈیا سے ہے, ایک ایران سے ہے, ایک ایتھوپیا سے ہے. اب یہ تینوں جو ممالک ہیں ان کے جزیرے جو ہیں یہ کنیکٹ ہوتے ہیں, اور جزیرے جب کنیکٹ ہوتے ہیں یہ پوری ورلڈ کو کنیکٹ کرتے ہیں. اس لیے لکھا ہے کہ قومیں جو ہیں اور سلاطین تیرے طلوع میں چلیں گی, وہ تیرے پاس آئیں گی. اور لکھا ہے کہ تمہیں جب بادل یہاں سے اٹھتے ہیں اس طرف, جب لو چلتی ہے تو اس کا امتیاز کرتے ہیں. لیکن واٹ اباؤٹ کرائسٹ, اس کے چرچ کے بارے, اس کی عبادت کے بارے, اس کے کلام کے بارے, وہاں پر دعائیں ہوتی ہیں. چرچ میں آنا میرے عزیزو میرے اور آپ کے لیے اسپرچول اسٹرینتھ ہے, میری اور آپ کی بچوں کی اسپرچول اسٹرینتھ ہے, تاکہ شیطان جب اٹیک کرے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے.
मैं और आप ये अगर इसने को अपना ले कि जो मैजिस हैं, मजूसी हैं, उनकी दूसरी क्वालिटी मौसम उन्हें नहीं रोक सके मेरे अजीजों। क्योंकि इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो कहते हैं बारिश होगी, उस कहते हैं कि लौ चलेगी, लेकिन हम आसमान की चीज़ों का भी जानते हैं, हम ज़मीन की चीज़ों का भी जानते हैं कि बट व्हाट अबाउट अस। उस क्राइस्ट के बारे मजूसियों ने जब सितारे को देखा है, उनको मालूम पड़ा है कि एक बादशाह पैदा हुआ है, और ये बादशाह वो है जो नॉर्मल नहीं है, ये बादशाह एक मुल्क और सल्तनत का बादशाह नहीं है। इसलिए ये काहनों की टीम जो इंडिया से एक है, एक ईरान से है, एक इथोपिया से है, ये तीनों ने अपने अपने टाइम में ना सेल फोन थे मेरे अजीजों, ना फेसबुक थी, ना कोई टेक्स्ट मैसेजेस थे। इन तीनों ने जब देखा है, क्योंकि उनकी किताबें बताती थी कि एक मुनज्जी पैदा हुआ है जो सारी दुनिया का खालिक मालिक होगा। ये जजीरे जो मिलते हैं इस बात की निशानी थी कि ये सितारा जो नजर आया है यस्सु अल मसीहा निजात दहिंदा पैदा हो चुका है। आओ हम जाकर उसको सजदा करें और पूरी दुनिया में इस बात की खबर फैला दें कि एक निजात दहिंदा पैदा हो चुका है जो मेरा और आपका शाफी होगा और मुझे और आपको जहन्नम की आग से बचाएगा। जोरदार ताली उसके। तीसरी क्वालिटी मजूसियों की, मैजाइज वर्शिप जीसस विद गिफ्ट्स। इन्होंने तहाइफ लाए हैं, और ऐसे भी नहीं तहाइफ जो हाथ में आया है दे दिया है, अपने अपने मुल्क की बेस्ट सौगात लेकर आए थे मजूसियों ने। तीसरी खूबी कि वर्शिप की है गिफ्ट्स के साथ। पहली खूबी जो थी वो ये थी कि वो ना दाएं मुड़े हैं ना बाएं, यीशु मसीह को उन्होंने दिल से सर्च किया और पाया। दूसरी खूबी, मौसम उनको रोक ना सके। आप जब कुछ भी इरादा करते हैं, मेरा लाइफ में अपनी बात करनी चाहिए, रिकॉर्ड है, मैंने जिंदगी में कभी वेदर नहीं देखा। जो करना है वो करना है, वेदर कोई भी हो। जब आप वेदर जो हैं उन्हीं का मुकाबला करेंगे तो फिर ही तो आपकी उड़ान ऊंची होगी। मुझे याद है रसल को भी मैंने टोयोटा में जब स्टडी करता था लगा दिया लाट अटेंडेंट की तरफ, ये घर के पास जो टोयोटा है वहां पे स्नो आई, तो जब खिड़की खोली तो बाहर स्नो है। तो रसल की मां कहती है छड़ दे काम तेन की जाना है, तो स्नो ही बड़ी पई है। अगले दिन उन्होंने इसको फायर कर दिया, चूंकि लाट अटेंडेंट का काम होता था गाड़ियां जा क्लीन करनी है जो उनके ऊपर स्नो पड़ी हुई है। तो मुझे जीएम भी नहीं बताता कि वो उसको कह रहे हैं कि अभी ना आना, अभी ना आना। तो रसल मुझे कहता है डैड, वो कहते हैं अभी ना आना, अभी ना आना। आई डोंट नो, आई डोंट नो इज दिस, कि यही तो आपकी ज़रूरत है, बाकी तो टाइम में तो आप लोग बैठे रहते हैं। लेकिन वेदर कैन नॉट स्टॉप मैजाइज, मजूसियों को नहीं रोक सके। और तीसरा जो इन्होंने किया है, अपने अपने मुल्क की बेस्ट सौगात लेकर आए हैं। मत्ती 2:11 में, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर देन दे ओपन देयर ट्रेजर। अगर क्राइस्ट के पास आना है देन फिर आपका हदिया, आपका नजराना, आपकी कुर्बानी बेस्ट होनी चाहिए। इन लोगों ने अगर नाम लिखा गया है, लिया जा रहा है, तो क्या लिखा है? डब्बे खोलकर सोना और लोबान और मुर उसको नजर किया। ज़बूर 72:10-14, तरसीस के और जजीरों के बादशाह नजरें गुजरानेंगे। ज़बूर ने पहले ही प्राफसी की है, तरसीस के और जजीरों के, तीनों जजीरे कनेक्ट होकर दुनिया को कनेक्ट करते हैं। और ये क्या करेंगे? नजरें गुजरानेंगे। सबा और सहबा के बादशाह हदिये लाएंगे, कुल कौमें उसकी मती होंगी, ऑल नेशन विल सर्व हिम। इसलिए ये बादशाह फर्क फर्क मुल्कों से आए हैं ताकि उसका नाम यीशु मसीह का पूरी दुनिया में लिया जाएगा। और आगे लिखा है, क्योंकि वो मुहताज को जब वो फरियाद करे
और गरीब को जिसका कोई मददगार नहीं छुड़ाएगा। क्यों क्राइस्ट को आना पड़ा? क्योंकि जो मुहताज है जब वो फरियाद करे, और गरीब को जिसका कोई नहीं, ही विल हेल्प द ऑप्रेस्ड हु हैव नो वन टू डिफेंड देम। कई होते हैं ना जिनका कोई भी नहीं होता, फिर खुदा उनके लिए जो होने वाले हैं ना उससे ज्यादा स्ट्रांग साथ खड़े कर देता है। और 14वीं आयत में लिखा है, वो फिदिया देकर उनको, उनकी जान को जुल्म और जबर से छुड़ाएगा और उनका खून उसकी नजर में बेशकीमत होगा। फॉर प्रेशियस इज देयर ब्लड इन देयर साइट। उनका खून जो उसकी खातर मारे जाएंगे। यशायाह 66 में लिखा है, गौर से सुनिएगा, ऊंटों की कतारें, इसीलिए लिखा है कई मजूसी वहां से निकले हैं। ऊंटों की कतारें लगी हुई हैं और मध्यान और ईफा की सांडनियां आकर तेरे गिर्द बेशुमार होंगी। ये यशायाह में 700 साल पहले प्रोफेसी लिखी गई है। वो सब सबा से आएंगे और सोना और लोभान लाएंगे और खुदावंद की हमद का ऐलान करेंगे, प्रोक्लेमिंग द प्रेज ऑफ द लॉर्ड। और खरूज 23 बाब में लिखा है, और कोई मेरे हजूर खाली हाथ ना आए, कोई मेरे हजूर खाली हाथ ना आए। इसीलिए मेरे जो तीसरी क्वालिटी हम मजूसियों की देखते हैं वो ये है कि उन्होंने सजदा किया है गिफ्ट्स के साथ, और गिफ्ट्स भी उन्होंने नॉर्मल नहीं लिए, गिफ्ट्स भी उन्होंने नॉर्मल नहीं, उन्होंने अपने मुल्क की बेस्ट जो सौगात है इसलिए ली कि हम एक बादशाह को, आप में भी कोई अगर वेल सेटल्ड है तो आप वैसे जब उसके लिए गिफ्ट लेते हैं तो आप सोचते हैं कि ये टारगेट से लेकर नहीं देना इस बंदे को, क्योंकि उसका पहनावा या क्लोथ ऑलरेडी बेटर है। तो यही यहां पर है, क्यों मैं और आप यीशु मसीह को लो क्लास, खुदा को लो क्लास ट्रीट करें। इनकी तीसरी क्वालिटी जो मजूसियों की है, इन्होंने मेरे अजीजो हदिया जात से, और लिखा है सोना, मोर और लोबान। जो सोना है ये इसलिए पेश किया गया कि यीशु मसीह तो बादशाह होगा। अब ये बादशाह जो है, ये जो वाइज मैन है, इसने मैजाई है, इसने दूसरे मजूसी को कॉल करके नहीं बताया कि मैं ये ला रहा हूं, इसने सोना लिया है क्योंकि इसकी मुल्क की सौगात जो है वो सोना है। दूसरे ने लोबान लिया है क्योंकि ये लोबान वाला जो है ये सरदार काहन कहलाएगा। और मोर यीशु मसीह की खातर जो है मेरे अजीजों, हमारी खातर यीशु मसीह जान देगा। ये तीनों गिफ्ट जो हैं इस कदर प्रेशियस हैं कि यीशु मसीह के पैदा होने से यीशु मसीह के मरने तक ये गिफ्ट जो हैं इस बात की सलाह करते हैं कि एक ऐसा बादशाह पैदा हुआ है जिसको देखने के लिए हम जा रहे हैं। इन मजूसियों ने अपने अपने जजीरों से निकले हैं, इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन मेरे अजीजों जो ही बादशाह के घर पहुंचते हैं ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वहां से ही इन्होंने बैतलहम में वो सितारा जो उनके आगे आगे चलता था, जो नेविगेट करता था, जो इनके पीछे जो मेरे अजीजों सितारे के चलते रहे, नेविगेशन आज निकला है। लेकिन मेरी और आपकी बाइबल ने, कलाम ने हजारों साल पहले इसमें लिख छोड़ा था। नेविगेशन को फॉलो करके ये उस सितारे के तक पहुंचते हैं जहां यीशु है, और वहां पर इन्होंने अपने डब्बे, अपने ट्रेयर, अपने दिल खोले हैं। पहली बात इन्होंने वहां वर्शिप की है, और उसके बाद अपने डब्बे खोलकर उनको सोना, लबान और मोर नजर किया है। सोना जो मेरे अजीजों इस बात की अलामत थी कि बादशाह होगा, तू बादशाह है। ये उस मुल्क का सोना मशहूर है, इसलिए इथोपिया वाला सोना लेकर आया था। लोबान जो है मेरे अजीजों ये ईरान वाला लेकर, यहाँ के परफ्यूम मशहूर थे। मोर जो है ये स्पाइसेस से बनता है, ये इंडिया वाला लेकर आया था। जब ये सारे मिलकर इस बात की सबूत देते हैं कि मेरा और आपका मसीहा कलाम की मुकद्दस के मुताबिक पैदा हुआ है, उसकी विटनेस, उसकी प्रोफेसी, पुराना अहदनामा, क्राइस्ट, रसूल, प्रॉफिट इस बात की शहादत देते हैं कि एक नबी आएगा, एक बेटा ऐसा पैदा होगा जो सारे जहान की निजात का बंदोबस्त करेगा। तो मेरे जो तीसरी क्वालिटी जो मजूसियों की थी वो ये थी कि उन्होंने अपने बेस्ट गिफ्ट पेश किए हैं। इस नए साल पर इस बात की भी रेजोल्यूशन बनाइएगा। अगर ये पहली रेजोल्यूशन हम
जो खुदावंद का घर है, ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं, तौबा करें और डिलीजेंटली, पूरे दिल से, केयरफुली उसको फॉलो करें। दूसरी बात, यीशु मसीह को जैसे मजूसियों ने कहा, मौसम कैसा भी क्यों ना हो, बरकत लेना चाहते हैं, खुशहाली लेना चाहते हैं, मौसम कैसा भी क्यों ना, चाहे घर के मौसम है, चाहे नेचुरल मौसम है, मौसम कैसा भी क्यों नहीं, मैं क्राइस्ट को देखने के लिए जा रही हूँ। आप वहाँ पे पहुँचेंगे और जब वहाँ जाएंगे तो व्हाट द बेस्ट गिफ्ट आई हैव फॉर हिम। एक अगर क्राइस्ट एक बादशाह पैदा हुआ है तो उसके लिए मेरा कौन सा तोहफा है। और चौथी बात जो है, मैगाई वेंट टू अनदर वे, ये मजूसियों ने दूसरी राह इख्तियार की। ये दोबारा हेरोदिस के पास नहीं गए। मत्ती 2:12 में लिखा, और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। दे रिटर्न टू देयर कंट्री बाय अनदर वे। अगर सारा साल मेरा यही रहा है ना, आइए आज रास्ता चेंज कीजिएगा, नए तरीके से उसकी इबादत करना शुरू करें। यशायाह 35:8 में लिखा है, और वहां एक शाहरा और गुजरगाह होगी, हाईवे और गुजरगाह, पैस ओवर, जहां से आप निकलेंगे, जा सकते हैं उस रास्ता से। और वो कौन सी है? जो मुकद्दस राह कहलाएगी। यशायाह 35 में लिखा है, और वहां एक शाहरा और गुजरगाह होगी जो मुकद्दस राह कहलाएगी, वे ऑफ होलीनेस, जिससे कोई नापाक गुजर ना करेगा। अनक्लीन विल नेवर ट्रेवल ऑन इट। सो तौबा करना बहुत जरूरी है उसकी इबादत करने के लिए। अगर मेरे सारे काम वैसे के वैसे हैं और इबादतों पे भी मैंने रगड़े डाले हुए हैं तो उनका कोई फायदा नहीं है। तौबा, अगर रास्ता चेंज नहीं हुआ, अगर दोबारा आप हेरोदिस के पास जाते हैं तो मेरे अजीजों रास्ता बदला नहीं है। और कई तो घरों में हेरोदिस बीवियां, हेरोदिस खामद हैं, जिन्होंने खुद जाना है ना घर वालों को जाने देना है। खुदा करे कि ये नए साल में ये वाले हेरोदिस कभी दिल खुदा चेंज कर दे, चाहे लेडी की सूरत में है हेरोदिस, चाहे मेल की सूरत में है। एक शख्स उसकी बंदगी इबादत करना चाहता है, हेरोदिस रोकता है। यहां पे लिखा है, और वहां एक शाहरा और गुजरगाह है जो मुकद्दस राह कहलाती है, जिससे कोई नापाक गुजर ना करेगा, लेकिन ये मुसाफिरों के लिए होगी। फॉर दोज हु वॉक इन गॉड्स वे। किन के लिए? फॉर दोज हु वॉक इन गॉड्स वे। ये एक इशारा होगी, हाईवे होगा। ऊपर को मैं इशारा करूं, ये इशारा होगी, हाईवे होगा जिसमें कोई नापाक गुजर ना करेगा, लेकिन ये मुसाफिरों के लिए होगी। अहमक भी उसमें गुमराह ना होंगे। इग्नोरेंट फूल्स विल नॉट वंडर ऑन इट। इग्नोरेंट, जानबूझकर उसकी इबादत ना करने वाले, जानबूझकर। टाइम है कलाम पढ़ने का, नहीं पढ़ना। टाइम है दुआ करने का, नहीं करनी। टाइम है चर्च जाने का, नहीं जाना। लेकिन यहां पे लिखा है ज़बूर 18 में 30 वर्ष में, लेकिन खुदा की राह कामिल है, खुदा का कलाम ताया हुआ है, वो उन सब की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं। और यूहन्ना 14:6 में लिखा, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाता। बाप के पास क्यों जाना जरूरी है? बाप के पास जाना इसलिए जरूरी है कि जब आदम और हवा को बनाया तो बाप ठंडे वक्त में उनसे रफाकत करता था, बाप उनसे बातचीत करता था, बाप की उनसे फेलोशिप होती थी। लेकिन ये फेलोशिप नाफरमानी की वजह से जब टूटी है तो इस रिश्ते को रिस्टोर करने के लिए एक सितारा जो है, जिसमें क्राइस्ट नजर आता है, जिसमें सलीब नजर आती है, उसका खुदा ने अरेंज किया है। और ये चौथी बात जो हम देखे हैं, मैजाइज जो हैं, दे वेंट टू अनदर वे, वो दूसरे रास्ता में से गए हैं। और जब दूसरे
दूसरे रास्ते में इसलिए गए, इनको मालूम पड़ गया था, क्योंकि ये नजूमी, क्योंकि ये गैब का इल्म रखते थे, इनको पता था अगर हम बादशाह के पास वापस जाते हैं डिस्ट्रक्शन होगी, कत्लो गारत होगा। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पे लिखा है यशाया में कि एक शाहरा है जिसमें सिर्फ होली पीपल, पाक लोग ही जाएंगे। इसलिए मुझे और आपको आज इस बात पर, नए साल पर सोचने की जरूरत है कि क्या, कहां पे कमजोरी है, कहां पे कमी है। अगर उसने मेरे और आपके पिछले साल के सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, तो नए साल पे इस बात पे चलें कि वो राह जो शाहरा है, वो राह जो हाईवे कहलाती है, और जिसमें इग्नोरेंट भी दाखिल नहीं होंगे। और लिखा है कि ना हरामकार, ना बुत परस्त, ना शहवत परस्त, ना जादूगर, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी और नाच रंग करने वाले उसमें दाखिल नहीं होंगे। खुदा ने ये इंतजाम किया था कि वो टूटा हुआ रिश्ता रिस्टोर करे, और वो क्राइस्ट के थ्रू हुआ है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह कहता है मैं दरवाजा हूं, उसके थ्रू कोई भी बाप के पास नहीं जा सकता। जो कोई यीशु मसीह को कबूल करता है, उसके पीछे चलता है, वो सारा इंतजाम जो खुदा ने इंसान के लिए किया है, वो यीशु मसीह के साथ कंप्लीट होता है। अगर मैं उस पर ईमान रखता हूं, तो उसने इसलिए अपने मुंह के अल्फाज हैं, अपनी जुबान मुबारक से कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कैन कम टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। मेरी बहन, मेरे भाई, आज ये मजूसी जो हैं, इन्हों की तरफ अगर देखते हैं, इनके कामों की तरफ देखते हैं, ये टोटल 4 बातें हैं। अगर इन 4 बातों को आज अपने साथ लेकर जाएं, एक एक पे गौर कीजिएगा, और क्या मैं ये कर रहा हूं या कर रही हूं? अगर कर रहे हैं तो मेरे जीजों, आप उनकी मजूसियों की, वाइज मैन की, 3 बादशाहों की लिस्ट में शामिल है। अगर नहीं है तो आज का दिन मुझे और आपको एक बार फिर अलर्ट कर रहा है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तौबा करके वापस आ जा। क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया है, और फिर उसने पैदा नहीं हुआ, यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर मेरी और आपकी कीमत अदा कर इस दुनिया से गया है। अगर आज भी हम उसको रिजेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो बहुत ही बदकिस्मती है। मुझे और आपको चाहिए कि यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, ताकि जिसका अरेंज किया गया था, मजूसियों ने उसकी खुशखबरी दी है, और खुशखबरी पूरी वर्ल्ड में फैलाई है। इसलिए मेरे अजीजों, मजूसियों जो हैं, उनको वाइज मैन इसलिए कहा है, उन्होंने पूरे दिल से यीशु मसीह की तलाश की है। कहीं पे भी थोड़ा सा कमी कमजोरी है, इस साल में उसको दूर करके पूरे दिल से उन मजूसियों की तरह अपने आप को तैयार करें, ताकि मैं और आप भी उस चरनी तक पहुंच सकें। मजूसियों ने यीशु को पाने के लिए मौसमों का लिहाज नहीं किया। उन्होंने मौसम नहीं देखे कैसे हैं, अंधेरा भी होगा, आंधियां चलती होंगी, तूफान होगा, बर्फ होगी, बारिश होगी, लेकिन उनको पता है हमने चरनी तक पहुंचा है। उन्होंने मौसमों की परवाह नहीं की। मजूसियों ने अपने बेस्ट हदिये खुदावंद यीशु मसीह के पास लाए हैं। पहले वर्शिप की है, हदिये नजराने खोल कर उसको सजदा किया है, और चौथी बात, मजूसियों ने दूसरी राह ली है। अगर मेरी राह पुरानी है, तो आइए आज उस राह को चेंज करके एक नई राह, जो क्रॉस की राह है, जो सलीब की राह है, उसकी तरफ चलें। उस राह पे जब चलेंगे तो आगे हमें यीशु मसीह चरनी में नजर आएगा, और जब नजर आएगा तो हम हमेशा हमेशा के लिए पूरी वर्ल्ड में उसकी मुनादी करेंगे। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। थैंक यू। 1 मिनट हम दुआ करेंगे पहले। आइए मेरे जो, और मेरी दरख्वास्त है कि कोई शख्स जिसको हैवीली फील करता है कि खुदावंद तूने मुझे नया साल दिया है, मैं चाहती हूं कि इस नए साल में मैं एक नए तरीके से इन 4 क्वालिटियों को अपने दिल में लेकर तेरी चरनी तक पहुंचूं, तेरा दीदार करूं, तेरे साथ रहूं, रफाकत और शराकत करूं। आप अपने हाथ अपने दिलों पर रख सकते हैं। मेरे साथ मिलकर हम इस बात का आज वादा करेंगे, खुदावंद
इन मैजाइज को जब मजूसियों की तरफ देखते हैं तो इन्होंने पूरे तौर से डिलीजेंटली तुझे फॉलो किया है, तुझ तक पहुंचे हैं। इन मजूसियों ने किसी मौसम की परवाह नहीं की। मुझे भी तौफीक देना कि हर मौसम में मैं तेरी चरनी तक पहुंच सकूं, तेरा दर्शन करूं। इन मजूसियों ने अपने बेस्ट प्रेशियस गिफ्ट तेरे हजूर पेश किए। मुझे तौफीक देना कि मैं तुझे वैसा ट्रीट ना करूं जैसा तू है, बल्कि बेस्ट से बेस्ट तेरे लिए देकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूं। और सबसे बड़ी बात, जैसे मजूसियों ने दूसरी राह ली, मुझे भी तौफीक देना कि इस नए साल में मैं वो पुरानी सारी बातें जिसकी वजह से खुद भी परेशान हूँ, ख़ानदान भी परेशान है, दूसरे लोग भी परेशान हैं, मुझे तौफीक दे कि मैं तुझे जानूं। क्योंकि जब तुझ में कोई भी आ जाता है उसको दुनिया की कोई फिक्र नहीं रहती, वो सिर्फ तेरे नाम को बड़ा करना चाहता है, वो तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देना चाहता है। खुदा जितनी बेटियों ने, भाइयों ने, बहनों ने, अजीज़ों ने अपने दिलों पे हाथ रखे हैं कि नए साल में इन मजूसियों की तरह नए तरीक़ा से तेरी रिसर्च करेंगे, तेरे पीछे चलेंगे। तेरा पाक रूह इनकी हिफाजत करे ताकि नए साल में नए तरीक़ा से, जिस तरह इन मजूसियों ने फ़र्क जजीरों से कनेक्ट होकर तेरी हजूरी तक पहुँचे, खुदावंद इसी तरह हम सब फ़र्क जो ख़ानदानों से हैं, फ़र्क जगहों से हैं, एक जगह कनेक्ट होकर तेरी इबादत करें, तेरी बंदी करें और तेरे नाम के झंडे को ऊंचा करें और हमारी ज़िंदगियों से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुक़द्दस जलाली यीशु नाम से, आमीन।